Hello, hi, I'm here. Hello, are you there? Assalamu alaikum. Yes, we can hear you. Am I Alaikum salam. am I So let's audible? start. Who will join? Yeah, there are lots of people. Yes, They are yes, going yes. to join. So we are just waiting for 3 to 4 more minutes, and as they will join, so we are going to start up. I just wanted to know that am I audible to everyone? Yeah. We can hear you. Thank you so much. Thank you so very much. Yeah. Much. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. You hope you all are doing well. And this is Beena Jibran from BJ Officials. And today we are going to have a webinar on the creative writing in the era of AI. Hope you all are ready. And there are few things that I would like to share with all of you. Before starting this webinar, that kindly keeps a notebook and a pencil along with you for noting down, or if you have any question regarding this webinar, regarding the topic, so you can text your question in the chat box that is just available in front of you. And by the end of this webinar, we might be having 3 to 4 minutes question hour session. So maybe we are going to ask you to open your mic and ask the question if it is needed. Right now, I am having Mr. Mohammad Ahmad, who is one of the panelists of today's session, and Miss Sonia Sikandar. She has also joined us as a panelist. So, I would like to ask Mr. Ahmad to kindly introduce himself, and Miss Sonia Sikandar as well afterwards. So, first of all, Mr. Ahmad, I would like you to introduce yourself, please. Assalamu alaikum everyone. I am audible. Yes, you are audible, Mr. Ahmad. How are you, first of all? I'm fine, Miss. How are you?
Alhamdulillah, I'm doing good. So, what's new? Introduce yourself, please. मेरा ओके थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फाखर है और मैं पाकिस्तान में एज ए कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ मसूद हॉस्पिटल के अंदर। और साथ में मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। और साथ में मैं बायोलॉजी टीचर हूँ और साथ में मैं यूनिक इंस्टीट्यूशन में एज ए एचओडी काम कर रहा हूँ साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। और साथ में एज ए मैं हिप्नोथेरेपिस्ट और आर्ट थेरेपिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। तो आज का ये जो सेशन था ये बड़ा अच्छा था मुझे लगा कि, और मैं एज ए डिबेटिंग सोसाइटी हेड भी हूँ पाकिस्तान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो मैंने कहा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा था और खास करके आई कि इराक के अंदर ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आज का लेक्चर होने वाला है। Inshallah. Okay, Miss Sonia Sikandar, if you are there, so kindly join us and give your introduction, please. Okay, Assalamu alaikum, Miss Veena and everyone. Walaikum This is Sonia Sikandar, and thank you very much, first of all, for giving me a chance to join such a good platform for about AI and creative writing. And I have been working I started as a teacher, and I have been associated with teaching and learning for almost 15 years. And Mashallah. Alhamdulillah, I have worked as a teacher, I have worked as an academic coordinator in different schools and all very renowned schools. And right now I have also taken a project of recently introduced in Gulistan e Johar. That was Daria Arkam's new project. It was for Right. pre-O levels. I developed that organization, hiring, each and everything was done by me. It was my project, and Alhamdulillah, I completed it successfully within 3 months. And Wonderful. right Wonderful. now, and I have also worked as an educationist and curriculum developer. And Alhamdulillah, I'm working with right now I'm working with the very renowned school. I've also worked with Falcon House and Happy Palace. Thank you so much, Miss Sonia, and it's a pleasure both of you having in my team and all the other members, those who have joined. So it's really wonderful that educationists are sitting. We all are sitting together, and we are going to learn something new. This is something very important. As for some new candidates are here, new participants are here, so I would like to introduce myself in depth. My name is Beena Jibran, and I am educationist, I'm a facilitator, I'm trainer, and I am an author as well. And specific areas of learning and development are early years, HR, and AI. So I have been researching for many years on these three topics, and Alhamdulillah, I am working, I am going training the people in this area as well. I'm working with different organizations right now, and this is all about, and inshallah there are many steps to go forward as well still now, I think so. So are you all comfortable with English only, or you want me to be bilingual? So however you are comfortable, do let me know in the chat box so that we can start. And comprehension actually is very important, so I will ask all of you that if you are comfortable with English and Urdu both, like you want me to be bilingual, so it's okay, I'll be bilingual. I think people want me to be bilingual. Okay, that's great. That's great. Okay. तो आज का हमारा वेबिनार क्रिएटिव राइटिंग इन द एरा ऑफ AI. आप सब ने ये टाइटल जरूर पढ़ा होगा, और फिर इसके बाद टाइटल पढ़ने के बाद, टाइटल से पहले मैं आप सब लोगों को इसका पर्पस बताना चाहूंगी कि क्या पर्पस होता है वेबिनार को कंडक्ट करने का, क्या पर्पस होता है, तो पर्पस क्या है वेबिनार का। अब ये सेमिनार हुआ करता था पहले, सेमिनार में लोग फिजिकली प्रेजेंट होते थे, अब वेबिनार होता है जब से कोविड के बाद एक पूरी सिनेरियो एजुकेशन का या वर्ल्ड वाइड बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, सबका चेंज हो गया है, एक व्यू चेंज हो गया है। नाउ यूजुअली वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स या वेबिनार्स का पर्पस ये होता है कि आगाही फराहम की जाए किसी भी एक ऐसे मसले पर, किसी भी एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे लोगों का समझना या उनका जानना जरूरी है।
ठीक है, तो आज हम यहाँ बैठे हैं कि हम इस बात पे डिस्कस करें या हम आपको ये आगाही दें कि एआई और क्रिएटिव राइटिंग का बेसिकली पर्पस क्या है। तो ये हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हम इस चीज को डिस्कस करें, आप लोगों से इस पे बात करें, आपको आगाही दें। तो व्हेन लाइक फर्स्ट टाइम जब आपने एआई और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में सुना या पढ़ा, आपने इस टाइटल के बारे में पढ़ा, तो आपके जहन में क्या चीज आई? सबसे पहले क्या बात आई आपके जहन में? मैं जानना चाहूंगी चैट बॉक्स में, अगर आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जी प्लीज, आई एम वेटिंग। आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या जहन में आया आपके। What first comes in your mind when you hear about creative writing and AI? Yes, anyone please? Chale, we move on. We'll let me check. There is something in the message. Participation is very important. I will appreciate if you all participate very nicely, okay, whenever it is needed. AI के बारे में जो भी हो जानना अच्छा लगता है। फिर जो भी मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आई डोंट नो, कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि एआई के बारे में आपको जानना अच्छा लगता है। वेरी गुड। यूनिकनेस एंड इनोवेशन इन राइटिंग, सोनिया सिकंदर कहती हैं। ठीक है, स्टोरी जनरेशन। ठीक है, आपने जब क्रिएटिव राइटिंग और एआई के बारे में आपने सुना या पढ़ा तो आपको आपके जहन में ये चीजें आई, तो कमोबेश ऑलमोस्ट एवरीवन वुड हैव लाइक थॉट अबाउट दिस। तो ये सोचा होगा यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने कि क्या कनेक्शन है। सही। तो आप मुझे अब आप ये बताइए कि इस वक्त हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां पर कितना कंट्रीब्यूशन है एआई का? आप लोगों को क्या हर मोड़ पे हर जगह पर एआई नजर नहीं आता? या हम ये कहें कि एआई के बगैर इस वक्त चलना मुहाल है? ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे जुमले आपको सुनने के लिए मिलेंगे कि नाउ एआई इज नो मोर a dream, it is all going on situations. So it is going to help us in many ways. Healthcare में, health transformation में AI is helping us. Enhanced efficiency and automation, it is also helping us in that. Advancement in transportation and logistics, there are different areas in the world. It is revolution जो education में आ रहा है उसमें AI का बहुत सारा कमाल है. Tackling the global challenges, जो global warming आ रही है या क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें एआई बहुत कमाल दिखा रहा है। यानी वो उसने हमारी डेली लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। आप किसी भी साइट पे जाते हैं, आप क्लिक करते हैं, वहां आपको चैट रोबोट्स मिल जाते हैं और वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। ठीक है, आपकी बैंक पे कॉल करते हैं, वहां पे आपको एआई से रिलेटेड जो है हेल्प मिलती है। और हर कोई यानी कोई ह्यूमन नहीं होता, ह्यूमन को एआई जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि चाइना ने इस वक्त रेस्टोरेंट्स के अंदर वेटर्स को रिप्लेस करके रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो अगर किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में जो लोग रुके हुए होते हैं आके, वो क्या करते हैं, अगर किसी चीज को उनको ऑर्डर प्लेस करना है तो उनको ऑर्डर लेकर कौन आता है? रोबोट्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो सो एआई इज वर्किंग एवरीवेयर। हम कहीं पर भी एआई को पीछे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप सब अग्री करते हैं इस पे? डू यू ऑल अग्री अबाउट दिस? तो अब क्या किया जाए फिर, जब एआई तो इतना ज्यादा मूव ऑन कर रहा है, उसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एआई मौजूद है, तो अब क्या किया जाए? जब हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर अगर बहुत सारे टीचर्स मौजूद हैं तो दे वुड नो दैट व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आपकी स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वोकैबुलरी एक्सपेंशन, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस,
एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड ये सारी चीजें डेवलप कर रही होती है। ठीक है, एआई टूल्स हमारे पास कौन से हैं? अगर हम राइटिंग की बात करें, क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, तो हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास बार्ड है, हमारे पास जेमिनाई है, और मेरे ख्याल में शायद मुझे उनके नाम भी नहीं पता होंगे। इतने सारे टेक्स्ट राइटिंग, चैट, ये एआई कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे साइट्स मौजूद हैं। तो अब हम क्या करें? आपने कुछ सोचा है इस बारे में? अभी कुछ अरसे पहले मेरी एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से, जिनके सवाल की वजह से मैंने इस वेबिनार को रखने का जो मेरा मकसद है वो उनका सवाल ही था। वो अपने बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग उनके होमवर्क में करवा रही थी, और उन्होंने मतलब करवाते हुए बोला अपने बेटे से कि जाओ चैट जीपीटी पे लिखो जाके कि तुम्हें इस पे ये कंटेंट चाहिए, वो तुम्हें पूरा लिख देगा और तुम उसको छाप देना। तो मेरा उनसे ये इख्तिलाफ हुआ कि इसकी क्या जरूरत है, लेट हिम राइट। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों हम बच्चे को सोचने दें, या हम बच्चे को इतनी एफर्ट में क्यों डालें, जब चैट जीपीटी है, जब एआई से रिलेटेड और भी जेमिनाई है, ये है वो है। तो बहरहाल मैंने उनको तो समझाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी आगाही देना हमें जरूरी है। तो इस वजह से हमने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग ये समझते हैं, डू यू थिंक दैट क्रिएटिव राइटिंग should be vanished off? We should not let the child think, we should not let the child imagine, we should not let the child explore, read, expand? क्या हम रोक दें अपने बच्चों को? What do you people think about it? क्या ये सोच ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक ही तो ये है कि आप अपने बच्चों को कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ लेके चलें। साइको न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आपका भी जो क्रोनोलॉजिकल एज है बच्चे की, उसके मुताबिक उसको लेके, यहाँ पे आप उसको जब ना कहेंगे और उसको आप, क्योंकि एआई सिर्फ जस्ट एक टूल है, इमोशंस नहीं वो देखता, तो आप उसको लेके चलिए बच्चे को, वैसे आप उसको बताएं कि जी ये आप है, ये डायमेंशन रखिए, जो भी वो क्रिएटिव एग्जैक्टली। राइटिंग कर रहे हैं। आप बात की थी वो अपने वो अभी बात करनी थी आप एक बच्चे वाली, कि जी आप चैट जीपीटी पे डालें और वहां से सारा कुछ आपको मटेरियल कंटेंट सामने उठा आ जाएगा। जी, ये कहें आप वो एक स्ट्रक्चर डालें, पूरा ना डालें, आप बिल्कुल उसको साथ साथ गाइड करें, जो उसकी जो बिल्कुल एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, जो उसकी कोग्निटिव या रीजनिंग पावर है, वो इनहेंस हो। बिल्कुल इसलिए ऐसे रोका ही, ना जाए, बिल्कुल बल्कि आप कहीं कुछ करें, बट वे चेंज करते हैं आप। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें अपना थिंकिंग चैनल चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस है, अगर हम उन्हें रीड आउट करते हैं, विल चिल्ड्रन स्टिल नीड टू राइट, और वी शुड स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग एआई? तो वी कैन नॉट डू दिस। बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर रॉन्ग। मतलब ना तो हम बच्चों को लिखने से रोके और ना ही हम उन्हें एआई यूज करने से रोके। तो हमें करना क्या है एक्चुअली? इन एक्चुअल व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली हमें बच्चों को आगाही देनी है। वी हैव टू हेल्प चिल्ड्रन what they have to do and how they have to do। ठीक है, अब वो कैसे यूजफुल होगा बच्चों के लिए? एआई या जितने भी ये चैट जीपीटी और दीगर चीजें हैं, ये यूजफुल कैसे होंगी? देखें, चैट जीपीटी या एआई whatever, कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज एआई इज स्टिल एआई, उसके पास इमोशंस नहीं है। ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इज स्टिल बियॉन्ड एआई। तो आप किसी सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन से निकलना आपने खुद है। आपने कोई स्टोरी बनानी है, तो उसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, उसकी उसकी सोच कैसे होगी, वो कितना अच्छा और कितना बुरा होगा, वो तो आपने खुद ही लिखना है, वो तो मैंने और बच्चों ने खुद ही लिखना है। ठीक है, आपको कहाँ पर एआई हेल्प आउट करेगा? कि आप कहीं पर स्टक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी कम हो गई है, या फिर आपको मजीद ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है, आपको कोई एक स्ट्रक्चर आउटलाइन चाहिए। वहां पर हमें क्या करना है? वहां पर हमें एआई हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये हमें ये नहीं बताएगा कि आप जो स्टोरी का आइडिया होगा वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से जेनरेट होगा। वो तो बच्चे ही लेकर आएंगे ना, वो मैं ही लेकर आऊंगी, वो आप में से कोई लेकर आएगा कि अगर हमें स्टोरी लिखनी है तो। लेकिन हम एआई के ऊपर उसको एक एज एन असिस्टेंट
एज एन कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ कोलैबोरेटर हम उसको सोचे कि वो जरूर काम करेगा. वी कैन नॉट माइनस AI एंड वी कैन नॉट माइनस क्रिएटिव राइटिंग. तो हम दोनों को नहीं छोड़ सकते. लेकिन दो बातें हैं इसके अंदर. एक ये है कि आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि आपने AI को का यूज कैसे करना है. और अगर मैं और आप, हम लोगों में से भी अगर किसी को ये अवेयरनेस नहीं है और हम ये समझते हैं कि अगर एक एप्लीकेशन लिखनी है तो मैंने चैट जीपीटी को बोलना है बहन मुझे चैट जीपीटी से मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो, और वो मुझे लिख कर दे देगा और मैं मनो मन उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके अपने CEO को, अपने बॉस को भेज दूंगी. तो एम आई राइट? क्या वो मुझे वो कंटेंट देगा जो मुझे रिक्वायर्ड है? मुझे भी उस पे काम करना पड़ेगा. उसको वो सोच मैंने देनी होगी. तो वो जो सोच हमने देनी है स्टूडेंट्स को, वो क्या है? वो कौन सी सोच है? वो कौन सी सोच है? देखें, हमें बच्चों को किस पे एक्सपर्ट करना है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे एक्सपर्ट करना है हमें. तो हम सब अपने स्टूडेंट्स को भी, एज अ पेरेंट अपने बच्चों को भी, और हम खुद भी इससे क्यूब्ड हो कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है. और इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगेगी. आपने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे आप जाके सर्च करें. आप मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज आजकल हो रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, तो वो आप जाके वहां से भी सीख सकते हैं. तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू डू. मगर ये है कि हमारी सोच क्लियर होनी चाहिए. वो क्लैरिफिकेशन क्या होनी चाहिए सोच की? दैट AI इज अ पावरफुल असिस्टेंट फॉर अस. It is a collaborator. It can enhance our vocabulary. It can enhance and correct the grammar. It can help us wherever we blocked. But it cannot replace us. It cannot replace our children. It cannot replace the thinking that a human have. So what the main thing of this webinar is to understand the difference between what we think before AI and what we think what will be after AI. तो इसके अंदर एक थोड़ा सा, एक बहुत बारीक सी लाइन है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. इस वक्त मेरे पास जो मेरे दो पैनलिस्ट मौजूद हैं, इसमें मैं पहले मिस सोनिया सिकंदर से कहूंगी कि वो अपने व्यूज जरूर शेयर करें. वी ऑल आर लिसनिंग टू हर. Okay. Actually, AI is, before AI, we know that we were working very hard and we were trying to improve ourselves, our creativities. हम अपनी हर creativity को खुद से improve करने की बहुत हद तक खुद से कोशिश करते थे. So इसमें बिल्कुल. हमारी improvement ज़्यादा होती थी, right? There were our own improvement at the time. But after AI, as AI came, so perfection became it became very easy to be perfect. हमारे लिए Exactly. perfect होना बहुत आसान हो गया. So I think that, in my opinion, as I have used different AI tools for almost, I have been using that for almost two years in all my activities, all work and in teaching, learning, each and everything. So I think that it cannot give you the emotions. It cannot give you the thinking that you actually have your own self, in your Exactly. own self. आपकी अपनी इमोशंस, आपकी अपनी फीलिंग्स जो आप जिस तरह से डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में, वो आपको नहीं दे सकता. नहीं दे बट सकते. it can actually explain to you the flaws of your writing. Exactly. It can आपकी help us राइटिंग in में this. आपके फ्लॉज को फाइंड आउट कर सकता है, आपको फर्दर आइडियाज दे सकता है टू मेक इट फर्दर डेवलप्ड एंड ग्रूम्ड. तो आपकी क्रिएटिविटी और फर्दर अच्छी हो सकती है. बट बिल्कुल. नॉट दिस वन कि आप उसे बोले, एक प्रॉम्प्ट दे दें और उसने पूरा जो लिख के दिया, वॉट एवर इट हैज गिवन टू यू, यू डिडंट रीड दैट एंड वो आपने आगे कॉपी पेस्ट करके डिलीवर कर दिया स्टूडेंट्स को, या वॉट एवर, जैसे आपने एक एप्लीकेशन की एग्जांपल दी. सो वहां पर भी वो मैम हम सुनते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत अकल होती है. की जरूरत है. बिल्कुल. Exactly. So definitely we have to use our own intellectuals Exactly. whenever, if we are using AI in any field, Yes, especially exactly. if we are talking about any child. अगर हम किसी child की बात करें,
बिल्कुल तो definitely we should not authorize them to just give one prompt and see what it is writing and keep copying them and just hand over to the teacher. No, एग्जैक्टली actually it means we are spoiling our child. हम अपने child की creativity को kill कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, So बिल्कुल ऐसे ही है। we डायरेक्ट करना है कि इससे आप ये हेल्प लीजिए, इस पॉइंट को इस तरह से फर्दर एनहांस कीजिए. Like for And example, we if have there to is a teach parent, this, and we have to teach this to our children. उनको ये हमें एक सोच देनी है कि AI is very helpful. हम उसे उनसे एंटी भी नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें यूज करने से मना कर सकते हैं. हमें उनको क्या सिखाना है, एक करेक्ट वे सिखाना है, उनको चैनलाइज करना सिखाना है, है, हाउ we have to, they have to use AI. Thank you so yes, much, for, Miss Sonia. Thank you so much. okay, thank you. Mr. Ahmad, now I would like you, and the question is the same, and it's up to you now. We like to know your views about it. Mr. Ahmad, you are not audible. Kindly unmute your mic. Okay. Yeah, I Yes. am audible. Yes, you are. Okay. यहाँ पे ना मैं इस क्वेश्चन के ऊपर एक ना मेरी कोटेशन है, वैसे तो वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे थी मगर वो यहाँ पे भी सेट हो रही है. देखें कि एक कोटेशन है, बिहेवियर कंडीशनिंग इज क्विक ड्यू टू मिरर न्यूरॉन्स. हमारे पास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हमारी बिहेवियर कंडीशनिंग जल्दी हो जाती है. जैसे एक छोटे रोते बच्चे को हम देखते हैं, वो हंस पड़े तो हम भी हंस पड़ते हैं. तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर मतलब फिर से उन्होंने बात की कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. हमारे पास इमोशंस हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हम अपनी जहानत या रीजनिंग के मुताबिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप अगर डायरेक्टली वो उसको वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप बच्चों को क्या बताएंगे आगे, या बच्चा क्या लिखेगा कि जी ये तो बस ये. आप उसको प्रॉपर करेक्टर में आके अपने इमोशंस के साथ को समझाएं. अगर आप डायरेक्ट ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको भी कुछ समझ नहीं आने वाला, ना ही बच्चे को आने वाला. वो डिपेंडेंट हो रहा है, हम उसको पूरा डिपेंडेंट कर रहे हैं कि जी नहीं आपने कॉपी पेस्ट करना है बस. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. इतना सा बीज ये Please unmute your mic, whoever is talking. Yes, sir, आप प्लीज कैरी ऑन करें. देखिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें. अगर आप जैसा भी आप बात की कि हमें ये बताना चाहिए कि जी एआई को यूज कैसे करना है. हमने सिर्फ जस्ट ये सुना कि जी एआई आ गया है और जी हमारे काम आसान होने वाले हैं, हम ये लेके नहीं चल रहे कि टूल है. हम प्रॉपर्ली डिपेंडेंट होके चल रहे हैं उसके ऊपर कि जी एआई है, ये लाइक चैट जीपीटी, मेटा एआई या जो भी आपके पास जेमिनी वगैरह है, कि जिससे ही हमने काम लेना, हम खुद नहीं कर सकते. हम अपनी एबिलिटीज को लॉस करेंगे. टीचर्स खास ये लेक्चर्स लेते हैं कहाँ से, चैट जीपीटी से. मैंने कहा हाउ यू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको. यहाँ से तो आपने जो सवाल निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, लेकिन देखें कि आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए अपने अंदर कि जी खाली डिपेंडेंसी ना रहे आपके अंदर कि जी आपने चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट है, अपना भी कोई रोल रखें बीच में. बिल्कुल ऐसा है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने. एंड इट्स रियली, आई विल रियली अप्रिशिएट द वे यू एक्सप्लेन द पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन. अगर कोई और बात रह गई और आप कहना चाहते हैं तो प्लीज यू हैव टाइम, यू कैन प्लीज शेयर. जी सर अहमद, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और कुछ आपके कोई पॉइंट रह गया है तो आप वो भी बता सकते हैं. आप करें, आप कंटिन्यू करें आप. नो, इट्स नाउ अ क्वेश्चन आवर सेशन. तो हमारे पास हमारे जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, अगर आपको ये हमारी बात समझ आ गई है, इस वेबिनार का मकसद यही था. देखिए वेबिनार क्यों कंडक्ट होता है कि हम एक तो आगाही देते हैं, एंड इट इज नॉट ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रेनिंग. तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो बिकॉज ट्रेनिंग इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो ये 2 मिनट में तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो आप यहाँ आप कोई शेयर करना चाहता है अपने व्यूज इस हवाले से, या कोई अपना एक्सपीरियंस, अपनी आपने किस तरह अपने स्टूडेंट्स को एआई यूज करना सिखाया, उससे रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन करके आप बता सकते हैं. हमारे पास वी आर जस्ट हैविंग 10 more minutes टू एंड अप द मीटिंग, तो हम एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं. यहाँ पर कुछ लोगों ने टेक्स्ट भी किया हुआ है, लेट मी चेक. यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. सर व्हाट्स योर गुड नेम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जिब्रान बात कर रहा हूँ, जिब्रान. जी सर. जी मैं इसमें यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि एआई को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जो आप
जैसे एक बंदा काम करता हुआ आ रहा है, उसमें कुछ चीजें उसकी वीकनेस है, जिसके उसमें उसको कंटेंट लिखने में, ईमेल्स में, किसी चीज में, तो उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो एआई का यूज कर सकता है, तो प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग को सीख के, ताकि जो आपकी वीकनेसेस है ना, वो भी एक, अगर हम पॉजिटिव वे में लें, तो आपकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई फॉर, बिल्कुल। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। तो आपके आप प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, और फिर आप जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो आप पहले उसको बताएं कि ये चीज चाहिए, तो वो आपको आपके मैटर का, आपके मतलब का आंसर निकाल के देगा, और उसमें फिर आप अपनी इनपुट डाल के आगे प्रेजेंट करें। तो आपकी जो अभी सर की भी बात थी कि सर अहमद साहब की, ये वो उसके अंदर इमोशंस, वो सब चीजें ऐड हो जाएंगी, फिर तो वो आपकी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो आपकी वीकनेस। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ऐसा ही है। और हमें किसी भी चीज को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि हम उसको अपना के उस अपनी वीकनेस बना ले के अब अगर नेट नहीं चल रहा और एआई नहीं है तो फिर हम कुछ भी ना कर सके। तो हमें हर हर चीज के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी रेडी कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना। हम कहीं पर अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहां पर उन्होंने हमसे कोई एप्लीकेशन, कोई सर्कुलर लिखने के लिए दे दिया है हमें, तो डेफिनेटली हम उनके सामने बैठ के चैट जीपीटी तो नहीं खोलेंगे। हम उनके सामने अब कोई और जेमिनाई तो हम नहीं खोलेंगे। हमें वहां पर अपना ब्रेन ही यूज करना है। हमारे ब्रेन में वोकेबलरी किस वक्त होगी, जब हम रीडिंग अच्छी करके गए होंगे। हमारा हमारा जो बैक ऑफ द माइंड, जितनी भी हमारी नॉलेज होगी वो स्ट्रांग होगी। तो हमारी नॉलेज, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस आर फार मोर, मैं हमेशा यही बोलूंगी, इट इज फार मोर हायर देन द एआई। एआई को किसने बनाया है? ह्यूमन नहीं बनाया है। ठीक है, एआई हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज देता है जितनी उसके अंदर फीडेड है। वो उससे आगे आपको नॉलेज नहीं देगा। आप उससे स्टोरी के टाइप्स मांगेंगे, वो आपको उसके फीड, जितनी स्टोरीज फीड हुई हुई है, जितने राइटर्स उसके पास फीड है, वो आपको एक लिस्ट उठा के दे देगा, लेकिन उसको उठाना आप नहीं है। तो स्मार्ट तो आप नहीं होना है, तो मैंने और आपने ही स्मार्ट होना है, हमें अपने बच्चों को ही स्मार्ट करना है। तो यहाँ पर राइमा उसामा, जो एक साहिबा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। इट विल इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग रन इफ द चाइल्ड विल स्टॉप थिंकिंग, ही विल स्टार्ट लिसनिंग व्हाट एआई और इंटरनेट टेल्स अस। तो वो तो सिर्फ क्या कहते हैं, हैंडीकैप हो जाएंगे हमारे बच्चे अगर हम उन्हें सिर्फ एआई तक महदूद रखें। आई होप कि मैंने अपना जो एक सोच थी, जो इस वेबिनार का मकसद था, मैंने वो आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अगर आप लोग समझते हैं कि ऐसा है तो प्लीज, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज जरूर क्वेश्चन कीजिए। और अगर ऐसा है और आपको वेबिनार का मकसद समझ आ गया है तो प्लीज या आप कमेंट में यस लिख दें, या माइक ऑन करके अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज, वी आर स्टिल हैविंग 5 more minutes, तो हम आपसे बात कर सकते हैं। राइमा पूछ रही है, कैन यू सजेस्ट हाउ टू मेक चाइल्ड और एनकरेज टू मेक सेंटेंसेस और essay इफ शी और ही इज लो इन कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, ये एक एक अलग राह पे बात निकल जाएगी, लेकिन बहरहाल क्योंकि वी ऑल आर, मोस्ट ऑफ अस आर द टीचर्स, तो इस पे मैं आपको बता दूं कि बच्चे को एनकरेज करना है तो आप उसकी रीडिंग एनहांस करें। ठीक है, और बच्चों से सिचुएशनल राइटिंग करवाएं। आप बच्चे को, आप रेस्टोरेंट लेके गए हैं, जब आप घर वापस आए तो उसको बोले जो कुछ तुमने रेस्टोरेंट में किया है, खाया है, गए हो, आए हो, किस में बैठे थे, क्या किया था, किससे क्या बात थी, उसको लिख लो। देखिए, जो बच्चा सिचुएशंस देखकर लिखता है ना, वो उसके लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिकल किया है, वो प्रैक्टिकल करके आया है अभी अभी। ठीक है, वो उसने आज कोई एक अपनी अम्मी के साथ हेल्प आउट किया है, केक बेक किया है, तो वो स्टेप्स लिख लो चलो बैठ के मेरे साथ, कि हमने केक बनाने के लिए जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, हमने क्या किया, वो हम लिख लें। तो क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल। आप उसके दिन भर की रूटीन उससे लिखवाइए, एंड यू विल सी दिस विल डेवलप हिज कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हम बच्चे की इज, एम, आर, ऑफ, दैट, दिस, हर चीज की इतनी गलती निकालते हैं, उसकी कॉपी रेड कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि उसका एक्सपीरियंस, जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, वो सारा लॉस्ट हो जाता। तो अगर उसका इसमें यहाँ जी जी जी, प्लीज, जी डॉक्टर साहब। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा।
बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे की कि जी हम कॉपी रेड कर देते हैं। ये सबसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टीचर्स मौजूद हैं। मैं साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव पे भी यहाँ पे बात करूंगा कि मैं ये हमारे साइकोलॉजिस्ट। लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई सर कि आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये चीजें देखिए, अगर आप अब बच्चे को आप रिवॉर्ड सिस्टम जरूर दें, रिवॉर्ड सिस्टम जरूर रखें। हमारे यहाँ पे जो नेग्लिजेंसी है जो टीचिंग के अंदर, वो यही है, हम रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखते। हम बच्चों के अंदर ये करते हैं कि जी तुम फर्स्ट आ गए हो, तुम फेल हो गए हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, ये ना करें। अगर आपने बच्चे को कुछ सिखाना है तो रिवॉर्ड सिस्टम साथ में ऐड करें। जैसे आप ये बात की मिस ने कि जी आप वो जो भी कुछ देख के आया, सीख के आया, वो लिखे आप, ठीक है, कोई ना कोई रिवॉर्ड दें उसको एंड पे, कि उसके अंदर एक हौसला अफजाई तो हो कि जी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और मैंने काम करना है। और इस तरह जब आप एक दफा दो दफा बच्चे के साथ करते हैं तो उसके अंदर खुद एक कह लें कि हौसला अफजाई उसकी हो जाती है, कि वो खुद कहता है कि नहीं मैंने ये लिखना है। और वो नई नई स्टोरीज आपको इमेजिनेशन वाली स्टोरीज लिख के देगा कि जी ऐसा होगा, ऐसे होगा, वो आप रीड करें। उसमें अगर आपको लगता है कि कोई मसला है तो उसको ठीक करवाएं। बिल्कुल ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच सर। और होप कि आप सब लोगों को हमारा पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ कहना है तो हम आपके जवाब देने के लिए यहाँ हाजिर हैं। हम मजीद एक्सप्लेनेशन दे सकते Yes, हैं। Miss Neha, I would like to add some words also यस, over here. यस As Sir प्लीज। Ahmed said, Sir Ahmed ने कहा कि हमें reward system रखना चाहिए. I also wrote one thesis on appreciation in students' learning. Na? So I would like to share my experience that those students who were appreciated in learning on from time to time on different stages, so their work was better than the I mean to say that their work and their outcomes of work was better than Much those better. who were not appreciated. Not appreciated. This is very true, Miss Sonia. You have really raised an excellent point. And sir, and thank you so much because you have really raised a very effective point that appraisal and reward, that is very important. It's very important. Thank you so much. Thank you. I'm sorry. Mariam. It was a very informative session. Would like to have more session. Inshallah Taala, there are many sessions. We will go on with that. All the sessions are in pipeline. So अब इस पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों को किसी चीज पे आगाही चाहिए तो आप हमारा बीजे ऑफिशियल्स और रोशनी इंस्टीट्यूट का मैं जरूर शुक्रिया अदा करूंगी, जिनकी कोलैबोरेशन के साथ आज हमने ये अपना इवेंट जो है वो ऑन एयर किया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी हम ऐसे सेशंस रख सकेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बोलो, बताओ, बोलो ना,